Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 1, General Science, 7th class. This chapter is about digestive system. In previous lectures, we discussed different parts of digestive system and digestion process was explained. While in today's lesson, we shall discuss different problems of digestive system. Different problems related to digestive system will be discussed. Meanwhile, students can ask any question if you are to ask. Any student with any question regarding previous lectures. If you are not having any question, then I would like to ask a few questions from you. Okay, sir. You are just to raise your hands. What is the need of breaking down larger molecules into smaller ones? Amir Salimi. सर आप किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट का नेम भी लें. Your hand is raised. आमिर सलीमी आपसे पूछ रहा हूँ. Sorry sir, I mistakenly raised my hand. Okay. Amima. जी बेटे आप बताएंगे. Sir, it is need to. Sir, large molecules cannot enter the blood vessels. That's why Yes. it is converted to small. Excellent. Large molecules cannot pass through the walls of blood vessels and can't enter blood. That is why it is need to break down these larger molecules into smaller ones so that they can be absorbed into the blood. Correct answer. Next question is there. What are proteases? Raise your hands. What are proteases? मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे जो हैं वो हाथ खड़ा करते हैं कि कितने बच्चों को पता है. What are proteases? 2 students. हाँ जी 3 बच्चे हो गए. और किस किस बच्चे को आता है? हाँ जी माशाल्लाह काफी हैंड्स जो हैं वो रेज हो चुके हैं. चले मैं Sir, my name is Riba Salman, but I can't change my name. Okay बेटा I change it. Now you Sir, can can I change. please? बेटे आप चेंज कर सकती हैं अपना नाम. I have given you option to change your name. अभी मैं पूछूंगा हफ्सा फैसल. Hafsa Faisal. What are proteases? Sir, can I please? बेटे हफ्सा फैसल आपसे पूछा था. ईमान शर्जील. Sir, जी बेटा. it gives the best condition for enzymes is called proteases. नो बेटे वो तो एसिड की बात कर रही हैं आप. एसिड की बात कर रही हैं. प्रोटीएजेस कुछ Sir, एंजाइम्स हैं. proteases is an enzyme that convert protein into amino acids. Yes, amino acids. Proteases are the enzymes that break down proteins into amino acids that convert proteins into amino acids. It was correct answer. Okay, next. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. Sir, how we will do the question answers of these chapters, because you have not sent us question answers, means the answers of the question in classroom. Which question? Sir has posted the question answers on Zoom.
Okay, Okay. sir. Thank you. I will put- Sir, I am Hafsa Faisal. You have revealed my name, but I cannot mute my mic. You can't. I check it. Yes, sir. Unmute. Unmute option is there. It may be Sir, I any problem with your mic. sometimes problem. Okay, your individual problem. No problem. Next question. You should be ready for next question. बेटे ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो पढ़ाते हुए आपको बताता रहा हूँ, ये आप लोग साथ साथ याद करते रहें या वर्कशीट से बन जाती हैं, ये डायरी वर्क होता है एक तरह का आपका, तो ये उससे रिलेटेड है। जनरल क्वेश्चन आपको पूरी चीजें याद करनी है जितने चैप्टर्स में। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर विलाई। इट इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट आर विलाई। अभी ये बताएंगे, हाथ खड़ा करें जो बता सकते हैं बच्चे। अमन फातिमा। The villi are perfect for absorbing food. Okay, well, what its function is there, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटे? Sir, It's like finger. Finger like projections are there. Okay. Okay, ठीक है बेटे, आप लोगों ने तैयार किया हुआ है और अच्छी बात है, साथ साथ तैयार करते जाएं। बेटे today we have to discuss problems which are Sir, there. now may I give the answer of villi? Villi are the finger-like projections in the small intestine and on the lining of small sir. intestine. They increase surface area for absorption. Absorption of digested food जो है, it is accelerated. Absorption of digested food ज़्यादा से ज़्यादा होती है villi के surface area ज़्यादा होने की वजह से. But the problems related to digestive system we have to discuss today. बताया कि germs get into the digestive system when we eat infected food. जब हमारी खुराक जो है वो साफ नहीं होती, उसमें जर्म्स अगर होते हैं तो खुराक के साथ ही, खाने के साथ ही हमारी बॉडी में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं। हाँ बेटे, क्वेश्चन पूछना है। सर आप किसके बारे में बता रहे हैं? प्रॉब्लम्स विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके सर। सर आर वी डूइंग रीडिंग? नहीं बेटे, रीडिंग नहीं है, ये मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ आपके सामने। रीडिंग तो बेटे साथ ही हो जाती है, सारी चीजें जब एक्सप्लेन होती हैं। ओके। तो बताया कि जब जर्म्स हमारी खुराक में शामिल होते हैं, ऐसी खुराक हम खाते हैं तो जर्म्स जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं एंड इट इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। इसको हम फूड पॉइजनिंग कहेंगे। हमारी खुराक की क्या होगी? पॉइजनिंग हो जाएगी। फूड्स कैन बी इन्फेक्टेड व्हेन यू बाय देम। आपकी खुराक में जरासीम कहाँ से शामिल हो सकते हैं? बेटे म्यूट रहें, जब क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो फिर अनम्यूट करें। कि ये जरासीम हमारी खुराक में कहाँ से शामिल हो सकते हैं? बेटे व्हेन वी बाय फूड, जब खुराक हम खरीदते हैं, और व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग आवर मील एट होम, ठीक है, घर में खाना तैयार करते हैं उस दौरान, जब कुछ चीजें खरीदते हैं तब, या फिर जो है वी डोंट वॉश आवर हैंड्स बिफोर प्रिपेयरिंग फूड और आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, डर्टी वर्क प्लेसेस, ठीक है, डर्टी वर्क सरफेसेस हैं, यूटेंसिल्स वगैरह जो हैं वो साफ नहीं हैं, लूज हैंगिंग हेयर, यानी बाल खुले छोड़े हों, तो ये कुछ वजूहात हैं। या फिर क्या, स्नीजिंग नियर फूड, खाना जहां पड़ा है उसके करीब छींकने से, छींक लेने से, उससे क्या होगा? नोज से कुछ जो ड्रॉपलेट्स वगैरह होंगे जिनमें जर्म्स होंगे तो वो हवा के जरिए, हवा में शामिल होंगे, फिर हवा के जरिए हमारी खुराक तक पहुंच सकते हैं। बेटे म्यूट कर लें खुद को, इस वक्त कौन अनम्यूट है? हफ्सा फैसल म्यूट है बेटा, ठीक है। तो ये आपको कुछ वजूहात बताएगी कि हमारी खुराक जो है वो कैसे इन्फेक्टेड होती है, ठीक है। फूड इन्फेक्टेड होने की वजूहात थी, और इन्फेक्टेड फूड आगे क्या करती है? फूड पॉइजनिंग काज करती है। तो ऐसे बेटे आपको इंडाइजेशन का बताया जा रहा है, एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, इनडाइजेशन, बदहजमी जिसे कह सकते हैं। इट इज यूजुअली काज्ड बाय ईटिंग फूड टू क्विकली और नॉट च्यूइंग इट एनफ।
पता है कि जब हम खुराक तेजी से खाते हैं, ठीक है, ज्यादा तेजी से खाते हैं, या उसको हम सही तौर पे चबाते नहीं हैं, थोड़ा सा चबाते हैं और निगल लेते हैं, तो इस केस में क्या होगा, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इस केस में हमारा स्टमक जो है वो ज्यादा से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस, एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा। अब उसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस के अंदर एसिड होता है, तो स्टमक के अंदर जो है देयर विल बी लॉट ऑफ एसिड, एसिड की मिकदार स्टमक के अंदर ज्यादा हो जाएगी। नाउ इफ द पर्सन बेल्चेस, बेल्चेस क्या होता है, डिकार लेना, ये डिकारें जो आती हैं, अगर आदमी को डिकारें आती हैं, सम ऑफ द एसिड क्या होगा, गलट में जाएगा, एसिड जो है वो गलट में आएगा। बेल्चिंग के दौरान वो जो एसिड स्टमक के अंदर ज्यादा हो चुका है वो गलट के अंदर आएगा, काजिंग द बर्निंग सेंसेशन, तो उसे जलन का एहसास होगा, जलन सी महसूस होगी। जब एसोफेगस, गलट क्या है, एसोफेगस, गलट का दूसरा नाम एसोफेगस है, जो फूड पाइप है, खुराक की नाली है जिसके जरिए खुराक मैदे में गई थी, तो बेटे ये वापस मैदे से उस गलट के अंदर वो एसिड जो है ऊपर को आएगा बेल्चिंग के दौरान, और जलन सी महसूस होगी, विच इज समटाइम्स कॉल्ड हार्ट बर्न। इसको हार्ट बर्न, सीने में जलन का महसूस होना या मैदे के अंदर जो जलन सी महसूस होती है, इसको हार्ट बर्न कहा जाता है। इनडाइजेशन का बताया बेटा कि इसको हम क्योर कैसे कर सकते हैं, बाय टेकिंग टैबलेट्स, ठीक है, एंटासिड जो है, एंटासिड टैबलेट्स जो है वो यूज करें, और ड्रिंक या ड्रिंक वगैरह जो है वो यूज करें, एंटासिड ड्रिंक्स विच कंटेन एन अल्कली। एंटासिड ड्रिंक्स या टैबलेट्स कौन सी होंगी, जिनमें अल्कली होगी। अल्कली बेटा याद रखें ये एसिड का उल्ट होता है, एसिड के अंदर हम अल्कली डाल दें, अल्कली भी केमिकल है, एसिड भी केमिकल होता है, अगर एसिड के अंदर अल्कली डाल दें तो ये अल्कली उस एसिड को खत्म कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, एसिड का असर जो है वो खत्म हो जाएगा। नेट की प्रॉब्लम इसमें दोबारा रिजॉइन कर लिया। ठीक है बेटा। सर जी बेटा पूछें। सर जो चैप्टर के एंड पे 12 में 14 क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे कॉपी पे? हाँ जी कॉपी पे करेंगे बेटा, अभी मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं उसमें पेज जो हम रीडिंग करते हैं उसके अंदर से जो आप क्वेश्चन आंसर्स करते हैं ये भी ये बेटा आएंगे पेपर? पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन कॉपी पे आप करेंगे, आपकी लर्निंग के लिए हैं ये। अभी देखेंगे मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब डिस्कस करने हैं तो ये आपको अक्सर आते होंगे, क्यों, उसकी वजह क्या है कि आप चैप्टर को सही तरीके से पढ़ चुकी हैं। इसमें जो डायरी वर्क आपको दिया जाता रहा है वर्कशीट की सूरत में, वो आप सही करती रही हैं, आपको क्वेश्चंस आते होंगे। और बेटा लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक। तो इसमें बताया कि पर्सन हु कॉन्स्टेंटली हैज टू मच एसिड इन स्टमक मे गेट एन अल्सर, कि अगर किसी बंदे में मुसलसल जो है ये एसिड प्रोड्यूस होता रहे, यानी अक्सर उसकी यही हैबिट रहे तेज खाने की और कम चबा कर खाना खाने की, तो उसके स्टमक के अंदर एक्स्ट्रा जो गैस्ट्रिक जूस है वो मामूल के मुताबिक ही पैदा होता रहेगा, मुसलसल पैदा होता रहेगा, और उसके रिजल्ट में उसके मैदे में अल्सर हो सकता है। अल्सर बेटा क्या होता है सर व्हाट इज अल्सर? हाँ जी अल्सर का ही मैं बता रहा हूँ बेटा कि मैदे के अंदर जो अंदरूनी जो दीवार होगी, अंदरूनी दीवार के अंदर इन्फ्लेमेशन सी आएगी और पेनफुल सेंसेशन होगी। आप कह सकते हैं जैसा कि जख्म से महसूस, जख्म की कैफियत होती है, जख्म की सूरत ऐसी क्रिएट हो जाना स्टोमिक के अंदर, अंदर उसकी दीवारों में। ये आगे लिखा ना आपके यहाँ बुक में भी जैसा मेंशन किया कि दिस इज व्हेन द एसिड स्टार्ट्स टू ईट द वॉल ऑफ स्टोमिक, कि जो एसिड अंदर स्टोमिक के अंदर ज्यादा रहेगा, ज्यादा देर रहेगा, तो वो स्टोमिक की दीवार को डैमेज करना शुरू कर देगा, और दीवार कैसे हो जाएगी, इट विल बिकम रॉ एंड पेनफुल। रा रा यहाँ पे रा का क्या मतलब होगा कि उसमें इन्फ्लेमेशन सी आ जाएगी, सोजिश सी आ जाएगी, एंड पेनफुल, और तकलीफ दे होगी वो। अल्सर्स बताया कि दे सीम टू बी मोस्ट कॉमन इन मिडिल एज एंड एल्डरली पीपल, जो दरमियानी एज के लोग हैं या जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनके अंदर ये अल्सर के केसेस जो हैं वो ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, एंड ऑफन सीम टू बी ब्रॉट ऑन बाय ओवरवर्क एंड वरी, कि ऐसे लोग जब
ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा बिजी लाइफ जो है वो रखते हैं, बहुत ज्यादा मसरूफ रहते हैं, यानी रेस्ट नहीं करते, ठीक है, रेस्टलेसनेस की वजह से या वरीज की वजह से बहुत यानी कि परेशान रहना ज्यादातर, तो ऐसे केसेस में ये स्टोमिक अल्सर जो है ये काज हो सकता है। बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग, इनडाइजेशन से रिगार्डिंग? यस सर। पूछें। सर मुझे अल्सर्स का क्या मतलब है? बेटे अल्सर मैंने बताया, स्टोमिक के अंदर जब एसिड ज्यादा देर में रहेगा, ज्यादा देर रहेगा, ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होता रहेगा और स्टोमिक में मौजूद रहेगा, तो वो स्टोमिक की दीवारों को डैमेज करेगा, दीवारों में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सोजिश आएगी और पेनफुल सी कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होगी, उसको अल्सर कहते हैं। सर Okay, अल्सर sir. हमारे पेट की सर अल्सर हमारे पेट की वॉल्स को क्यों डैमेज करता है? बेटे दोबारा पूछें क्वेश्चन। मैं कह रही हूँ सर अल्सर हमारे स्टमक की वॉल्स को क्यों डैमेज करता है? अल्सर बेटे, अल्सर तो जो डैमेज कंडीशन है उसको हम कह रहे हैं, एसिड असल में डैमेज करता है। एसिड देखे ना, एसीएल जो एसिड है ये थोड़ी मिकदार में रहे, थोड़ी मिकदार में जैसे प्रोड्यूस होता है तो वहां पे प्रोटीन डाइजेस्टिंग जो एंजाइम्स हैं उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा करता है। लेकिन हमारा स्टमक जो है ओके सर। वो एसिड स्टोर करने के लिए नहीं है, वो एसिड को होल्ड करने के लिए नहीं है। लेकिन स्टमक की वॉल्स के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर जरूर है, लेकिन अगर मुसलसल ही एसिड अंदर मौजूद रहेगा तो वो दीवार डैमेज होना शुरू हो जाती है, तब अल्सर होता है। और रीजन बेटे आपने देखा ना कि खुराक खाना जल्दी खाना और थोड़ा चबा कर खाना, तो आप इस चीज का ख्याल रखें, खाना खूब चबा कर खाया करें, ठीक है, तेजी ना किया करें खाना खाने में, आहिस्ता आहिस्ता खाना खाया करें। इसका फायदा क्या होता है, खुराक अच्छी तरह चबाई जाती है, उसका सरफेस एरिया बढ़ता है, उसमें सलाइवा ज्यादा से ज्यादा मिक्स होता है, वो नरम हो जाती है और उसका हजम होना जो है वो इजी हो जाता है। ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आप बड़ी हेल्पफुल होंगी। आज बेटे और है किसी का क्वेश्चन? नेक्स्ट डायरिया हमने डिस्कस करना है। नो सर। ओके, डायरिया जो है सर। इन्फेक्टेड फूड, इट कैन बी वोमिटेड फ्रॉम द स्टमक। बेटे जब इन्फेक्टेड फूड होगी, जरासीम ज्यादा खुराक होगी जिसमें जरासीम वगैरह शामिल हैं, इट कैन बी वोमिटेड फ्रॉम द स्टमक क्वाइट सून आफ्टर इट इज ईटन। तो खाना खाने के फौरन बाद क्या होगा, आपको वोमिटिंग हो सकती है, कै आ सकती है, जैसे कि वो खाना मुंह के रास्ते बाहर निकल जाएगा। मोर ऑफन के जर्म्स जो हैं दे आर बिजी ब्रीडिंग एंड मल्टीप्लाइंग इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम बिफोर यू बिगिन टू फील इल। कहा कि आपको बीमारी का एहसास तो बाद में होता है, जरासीम जो होते हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ब्रीडिंग कर रहे हैं, यानी उनकी तादाद बढ़ रही होती है, नस्ल बढ़ रही होती है, रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं और मल्टीप्लाइंग में तादाद उनकी बढ़ रही होती है। तो जब उनकी तादाद बढ़ती जाती है, बहुत ज्यादा जरासीम हो जाते हैं, तो उस वक्त आपको महसूस होती हैं बीमारी की अलामत। अब जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं दे रश टू डिस्ट्रॉय द जर्म्स एंड द लिक्विड फूड इज रश्ड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बेटे ये नेचुरल सिस्टम है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम के, व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये इन जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। कब डिस्ट्रॉय करेंगे, जब ये जर्म्स ब्लड के अंदर आते हैं, और इसके बाद क्या होगा कि जो लिक्विड फूड होती है, लिक्विड फूड इज रश्ड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, कि अभी डाइजेशन हुई नहीं होती प्रॉपर, लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन इन जरासीमों को जिस्म से निकालने के लिए क्या होता है कि लिक्विड फूड की मूवमेंट तेज हो जाती है, इंटेस्टाइन्स की जो मूवमेंट है जिसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं वो फास्ट हो जाती है, ताकि वो जो फूड है अलॉन्ग विद दीज जर्म्स, चूंकि अब वो इन्फेक्टेड फूड है तो बजाय इसके कि वो स्टमक के अंदर रहे या इंटेस्टाइन में ज्यादा देर रहे और ये जरासीम वहाँ और बढ़े और फिर आगे ब्लड में इफेक्ट्स इनके प्रोड्यूस हों, तो उस खुराक को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, that is rushed out of the stomach, and you can see why diarrhea is often called runs। ठीक है, द रन्स यानी कि डायरिया को अमूमन जो रन्स वगैरह ये पेचेस की कंडीशन जो है इसको बोला जाता है, तो उसकी यही वजह होती है कि इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट फास्ट हो जाती है और उस वजह से ये जरासीम ज़्यादा खुराक
जिस्म से खारिज हो जाती है। डायरिया बताया कि इट स्टॉप्स व्हेन द इन्फेक्शन क्लियर्स अप। डायरिया उस वक्त स्टॉप होता है जब इन्फेक्शन खत्म हो जाती है। और ड्यूरिंग द अटैक क्या होता है, चूंकि ये लिक्विड फूड पास आउट हो रही होती है, तो इस दौरान ग्रेट डील ऑफ वाटर और इंपॉर्टेंट मिनरल सॉल्ट्स और विटामिन जो हैं दे आर लॉस्ट। ठीक है, विटामिन जो है वो लूज हो जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है, मिनरल सॉल्ट्स जो है नमकियात उनकी कमी हो जाती है। तो इस तरह से बेटे जो डायरिया है इट्स अ सीरियस इलनेस, ये बड़ी शदीद किस्म की बीमारी है इन बेबीज, बच्चों में खास तौर पे दे क्विकली बिकम डिहाइड्रेटेड एंड इल, क्योंकि उनमें पानी की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेटेड मीन पानी की कमी हो जाना, क्योंकि पानी ज्यादा से ज्यादा लूज हो रहा है ना इसमें, जो खुराक बाहर निकल रही है उस सूरत में, वेस्ट की सूरत में जो फूड है मुकम्मल तौर पे वो डाइजेशन जो उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हुई होती, तो पानी ज्यादा से ज्यादा उसमें यूज हो रहा होता है उसको बाहर निकालने में, खारिज करने में, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। द लॉस्ट वाटर मस्ट बी रिप्लेस्ड एंड द बेबी टेकन टू डॉक्टर। बताया कि पानी की जो कमी हो रही है उस कमी को पूरा किया जाना चाहिए, और बच्चा जो है उसको, यानी जो पेशेंट है उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर प्रॉपर मेडिसिन सजेस्ट कर सके। इफ द डायरिया लास्ट मोर देन अ डे, कि अगर एक दिन से ज्यादा देर तक जो है ये डायरिया की कंडीशन रहती है, तो पेशेंट को डॉक्टर के पास फौरन ले जाए ताकि पानी की कमी जो है वो मजीद ना हो सके। अब इसको हम रोक कैसे सकते हैं? एक्स्ट्रा हाइजीन, ज्यादा से ज्यादा सफाई का ख्याल रखा जाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज इन्फेक्शन जो है ये बाकी लोगों को भी स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, एक बंदा जो इन्फेक्टेड है, अब उसे ये इन्फेक्शन, अगर वो सफाई का ख्याल नहीं रखेगा तो वो उसके हाथों में इन्फेक्शन ट्रांसफर हुई है, जरासीम वगैरह गए हैं, अब हाथों से वो बर्तनों को टच करेगा, बर्तनों में जाएगी, तो उसके साथ जो दूसरे लोग होंगे बर्तन यूज करने वाले, तो इस तरह से कांटेक्ट की सूरत में क्या होगा कि ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों को भी ट्रांसफर हो सकती है। बेटे डायरिया क्लियर है आपको? नेक्स्ट इज देयर कॉन्स्टिपेशन। part of the food you eat, बताया कि इंक्लूडिंग द फाइबर इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी खुराक का कुछ हिस्सा जिसमें ज्यादा फाइबर होता है ये डाइजेस्ट नहीं होता, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसकी ब्रेकडाउन नहीं होती, तो ये कहाँ जाता है? ये ट्रेवल्स टू द रेक्टम। ठीक है, ये रेक्टम में चला जाता है, वेयर इट फॉर्म्स फीसेस, वहां इसके फीसेस बन जाते हैं, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है जिसमें ज्यादातर फाइबर मौजूद है, तो ये बेटे फीसेस बन जाएंगे, रेक्टम में स्टोर होंगे। फीसेस आर पास आउट ऑफ द एनस बाय पावरफुल मसल्स। जो रेक्टम के मसल्स होते हैं उनसे क्या होगा कि ये दे विल बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस, ये फीसेस बाहर खारिज हो जाते हैं। एंड पीपल हैव वेरी डिफरेंट लेबोरेटरी हैबिट्स। लेबोरेटरी हैबिट्स क्या होता है? वॉशरूम जाने की हैबिट्स। बताया कि लोगों की जो हैबिट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। सम पीपल जो हैं दे गो 4 times a day, ठीक है, कुछ लोग 4 दफा वॉशरूम चले जाते हैं, कुछ 1 a day यानी दिन में 1 दफा जाते हैं, इवन कुछ ऐसे हैं कि जो एवरी 4 days, ठीक है, 4 दिनों में, जो कि रेयर ही को केस होगा। और एनीथिंग इन बिटवीन, कैसे इसके इन बिटवीन भी हो जाता है। पता है कि इफ द फीसेस आर नॉट पास आउट अकॉर्डिंग टू योर यूजुअल पैटर्न, कि आपका यूजुअल पैटर्न, जैसे बताया कि आपका एक पैटर्न जैसा बना हुआ है, बेशक वो डेली का है या डेली 2 times का है, जो भी है, तो अगर उस यूजुअल पैटर्न के मुताबिक फीसेज हैं जिस्म से खारिज नहीं हो रहे, दे मे बिकम थिक एंड हार्ड एंड ड्राई, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो जो फीसेज हैं वो थिक हो जाएंगे, ठीक है, पानी की उसमें चूंकि कमी, पानी की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, वो हार्ड हो जाएंगे और ड्राई हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे। एंड दिस इज बिकॉज बताया कि वेस्ट स्टेज इन द लार्ज इंटेस्टाइन फॉर लॉन्गर, ठीक है, वेस्ट ज्यादा देर तक लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, एंड हैज मोर देन द यूजुअल अमाउंट ऑफ वाटर अब्सॉर्ब फ्रॉम इट, उसमें से ज्यादा पानी क्या है? अब्सॉर्ब हो जाता है, अब्सॉर्ब होकर वो ब्लड में चला गया, तो अब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो हार्ड और ड्राई हो जाएंगे। द थिक, हार्ड एंड ड्राई फीसेस जो होंगे दे आर अनकंफर्टेबल और इवन पेनफुल टू पास,
अब इस तरह के जो फीसेस की ये कंडीशन पैदा हुई है कि वो हार्ड हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, तो इनका जिस्म से जो अखराज है वो अनकंफर्टेबल होता है और पेनफुल होता है, ये आसान नहीं होगा, ठीक है, अब तकलीफ दे होगा, मुश्किल हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन इज नॉट सीरियस, बताया कि ये इतनी सीरियस डिजीज तो नहीं है, एंड वरी कैन मेक इट वर्स, लेकिन इससे जो बंदा परेशान हो जाता है उससे ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाती है, यानी कि शिद्दत शिद्दत इसका असर इस बात से ज्यादा होता है कि बंदा परेशान हो जाता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गई है। It's important to go to the toilet at the same time each day. अब आगे आपको एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं कि डेली एक मखसूस टाइम जो है। Sir, जी बेटा। sir, is constipation a type of allergy? बेटा ये एलर्जी नहीं है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज को कहते हैं, कब्ज समझते हैं उर्दू में? Yes, sir. Sir, डायरिया का उल्टा है, okay, sir. डायरिया का उल्टा है, डायरिया में मूवमेंट तेज होती है, वेस्ट जो है वो बहुत जल्दी खारिज हो रहे होते हैं, जैसे पानी भी लूज हो रहा होता है। तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर बेटे इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट स्लो हो जाती है और पानी की एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होती है, तो फिर रिजल्ट क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट हैं वो हार्ड हो जाते हैं और उनका जिस्म से जो अखराज है वो आसान नहीं होता, ठीक है, मुश्किल से खारिज होते हैं। आगे एहतियाती तदाबीर आपको बताई जा रही है कि डेली जो है आपको क्या करना चाहिए, एक मखसूस टाइम रखते हुए उस टाइम पे वॉशरूम लाजमी जाएं, एंड व्हेन यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि आपके पास टाइम भी हो, ठीक है, आपके पास टाइम भी हो, जैसे फ्री हो तो उस टाइम एक मामूल के मुताबिक वॉशरूम में जाएं। इफ नथिंग हैपेंस आफ्टर से 10 मिनट्स डोंट वरी, बेशक आपको 10 मिनट गुजर गए, वेस्ट खारिज नहीं हुए, तो परेशान होने की जरूरत फिर भी नहीं है। जैसे आपको बताया ना कि कॉन्स्टिपेशन इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन वरी कैन मेक इट वर्स, आप परेशान हो जाएं कि ये तो वेस्ट खारिज नहीं हुए, कब्ज हो गई है, पता नहीं क्या होगा ऐसे आगे, तो ये परेशानी जो है इसको और खराब कर देती है। बट डोंट वरी देन, ट्राई अगेन द नेक्स्ट डे, बताया कि नेक्स्ट डे मामूल के मुताबिक एक टाइम रखें और उस टाइम पे जाएं। ड्रिंक अप टू 3 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे, डेली ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, तकरीबन 3 लीटर तक जो है वो पानी पिए। 3 लीटर बेटे ये तकरीबन 12 गिलास बन जाते हैं। अब गिलास कुछ छोटे कुछ बड़े होते हैं, दरमियाना साइज का गिलास हो तो ये तकरीबन 12 गिलास बेटे होते हैं 3 लीटर के। तो आप 12 गिलास क्या डेली पीती हैं पानी के? खासतौर पे गर्मी के मौसम में तो बेटे ज्यादा पानी पीना चाहिए, 12 से भी ज्यादा पी सकती हैं, क्योंकि पानी का लॉस ज्यादा होता है स्वेटिंग के जरिए और एस्पिरेशन के जरिए। एंड मेक श्योर यू हैव एनफ फाइबर इन योर डाइट, और हमारी खुराक में फाइबर भी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, फाइबर ज्यादा होना चाहिए हमारी खुराक में। इससे जो है ये कॉन्स्टिपेशन जो है इट कैन बी अवॉइडेड। दिस इंप्रूव्स द टोन ऑफ द मसल्स ऑफ द रेक्टम। अब मसल की टोन, टोन क्या होती है बेटे? मसल का रेस्पॉन्स। यहाँ पे टोन ऑफ मसल्स का क्या है? मसल्स का रेस्पॉन्स। कि रेक्टम के मसल्स का रेस्पॉन्स क्या है कि जब अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है फीसेस रेक्टम के अंदर भर गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, तो रेक्टम के मसल्स को चाहिए कि वो अपनी पावरफुल कंट्रैक्शन के साथ उन वेस्ट को एनस के रास्ते खारिज कर दें। तो ये बेटे टोन ऑफ मसल्स है। तो कहा कि अगर फाइबर हमारी खुराक में ज्यादा होगा तो ये टोन, तो बेटे जो फाइबर है इसका काम क्या बताया मैंने कि ये वाटर को होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से जो फीसेस हैं वो ड्राई नहीं होने पाते, हार्ड नहीं होने पाते, और उनका रिमूवल ये जो है वो आसान होता है। नेक्स्ट बताया कि मेक श्योर यू हैव प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज जो है ये भी एक आपकी रूटीन का पार्ट होना चाहिए। डेली एक्सरसाइज लाजमी किया करें, बेशक थोड़ी करें। सिंस देयर, वालेकुम सलाम जी बेटा, क्वेश्चन है तो बेटा पूछें वरना म्यूट रहें। सिंस देयर इज नो बेटर वे टू इम्प्रूव मसल टोन, बताया कि मसल्स के रेस्पॉन्स को, मसल कौन से? बॉडी के मसल्स भी इवन और रेक्टम के मसल्स भी जो हैं, इनके रेस्पॉन्स को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज से बेहतर बेटे और कुछ कोई चीज नहीं हो सकती है इसकी खातिर। एंड ट्राई टू अवॉइड लैक्सेटिव्स। लैक्सेटिव बेटे वो अद्वियात होती हैं जो कब्ज या कॉन्स्टिपेशन जो है उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट के लिए
जो अद्वियात यूज होती हैं उन्हें लैक्सेटिव्स कहा जाता है, कब्ज कुशा जो अद्वियात हैं। दीज आर द मेडिसिन टू सॉफ्टन द फेसेस। बेटे ये मेडिसिन क्या करती हैं, फेसेस को सॉफ्ट कर देती हैं। एंड दे वर्क बट देयर इज अ रिस्क that they may cause the powerful muscles of the rectum to lose their muscle tone and become lazy। बेटे इन अद्वियात का ये असर तो होगा, ये काम तो करेंगी कि जो कॉन्स्टिपेशन है उस वक्त वो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो बेटे मसल्स हैं, रेक्टम के जो मसल्स हैं, पावरफुल मसल्स हैं, उनकी टोन को खराब कर देंगी। मसल्स का जो रेस्पॉन्स है वो इम्पेयर हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, अब मसल जो हैं वो लेजी हो जाएंगे। You then need even stronger laxatives to help you to go to the lavatory। अब वॉशरूम जाने के लिए यानी वेस्ट मेट को खारिज करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव्स जो हैं वो यूज करने पड़ेंगे, कि माइनर जो कब्ज कुशा दवाई है वो काम नहीं करेगी, तो स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव्स फिर यूज करने पड़ेंगे। इसलिए कहा कि इन चीजों से अवॉइड करें, आप अपनी खुराक के अंदर फाइबर को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, पानी जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करें, डेली रूटीन के मुताबिक जो है वो वॉशरूम जाएं और एक्सरसाइज का ख्याल रखें। ये कुछ एक्टिविटीज आपको बताई गई हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने में हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। बट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कॉन्स्टिपेशन और डायरिया? एज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एनी स्टूडेंट? What is lavatory? What is lavatory? लेबोरेटरी, लेबोरेटरी बेटे वॉशरूम जाने को कहते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी वॉशरूम को कहते हैं। वेस्ट को खारिज करने के लिए आपका जो वॉशरूम जाना है उसको, ये वॉशरूम को ही लेबोरेटरी एक दूसरा लफ्ज है उसके लिए यूज होता है। कोई और क्वेश्चन? सर मैंने क्वेश्चन लिख लिए थे। क्वेश्चन आपने लिख लिए? क्वेश्चन आंसर्स मैंने लिख लिए थे। ओके बेटे, मैंने यस सर। क्वेश्चन आंसर जो है उसमें किया ना, मैं ऐड किए थे, अपलोड किए थे गूगल क्लास के अंदर, और आज मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर देता हूँ शेयर। ये बेटे आज जो मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा, ये पहले 3 चैप्टर के जो है वो नोट्स होंगे, पहले 3 चैप्टर के मुकम्मल एक्सरसाइजेज के नोट्स होंगे। आपका सेकंड चैप्टर जो है वो पीबीएल है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, उसमें वैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेटे जैसे पहले आप पूरा चैप्टर याद कर रही हैं तो सेकंड चैप्टर की भी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने उसके भी सारे नोट शामिल कर दिए हैं। आप जो नहीं याद करना चाहती ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे उसमें से। एग्जाम में तो बेटे इन वर्कशीट्स में से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपको डायरी में दी जाती हैं चीजें, तो ये सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए है, बिकॉज यू हैव पोटेंशियल टू लर्न मोर एंड मोर थिंग्स। हाँ बेटे, क्वेश्चन है किसी का? नो सर। ओके बेटे, आप क्वेश्चन देखें। नेम 7 ग्रुप्स ऑफ फूड that are needed for a healthy and balanced diet। 7 groups of food बेटे, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। यस सर आपने ये सेंड कर दिए थे, मैंने सारे कॉपी पे राइट कर लिए हैं। ठीक है बेटे, अभी बेटे मैं आपको बता देता हूँ। सही, मैंने सारे राइट कर लिए कॉपी पे। ठीक हो गया। अच्छा बेटे, मैं आपको ये 7 सर यही नोट्स है ना? हाँ जी, यही नोट्स हैं बेटा, सुन लें। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर, वाटर, ठीक है, ये 7 कंपोनेंट पूरे हो गए। उसके बाद दादू के फोन पे भेजो। व्हाट इज मेंट बाय डाइजेशन एंड वेयर डज इट अकर? बेटा डाइजेशन आप सब जानते हैं, the process in which larger food molecules are converted into smaller ones so that they can be absorbed into the blood। and where does it occur? but ये digestive system में होता है, it occurs in digestive system। look at the diagram of digestive system, write down the names of the parts। तो बेटे ये देखें, ये esophagus है, ये stomach है B वाला, और C वाला जो है वो liver है, D में gall bladder है, ए में पैंक्रियाज है,
जी में ये लार्ज इंटेस्टाइन है और एफ के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है। एच जो है वो रेक्टम है और आई जो है वो एनस है। अभी मैं सारी चीजें बता रहा हूं, लेकिन जब आपका टेस्ट होगा फिर आपसे सारी पूछी जाएंगी। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी बेटा पूछें। सर ये जो डायग्राम है हाँ जी, हम लोग ये बनाएंगे नोटबुक पे नोटबुक पे और बनाएं, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज पे बनाएं, और जिसकी कॉपी में ब्लैंक पेज नहीं है वो लाइन पेज के ऊपर बना सकती हैं। ओके सर। Question number 4. Why do we need to digest our food? What are the two ways in which food is broken down during digestion? बेटे अभी मैंने पूछा भी था क्वेश्चन लेक्चर के दौरान कि why do we need to digest our food? बेटे our food consists of larger molecules that can't pass into blood stream, into blood vessels, you can say. So in order for the absorption of this food into the blood, we need to convert larger molecules into smaller ones. बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। What are the two ways in which food is broken down during digestion? तो बेटे वो दो तरीके कौन से हैं? मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। बेटे समझ आ रही है क्वेश्चंस की? जी सर। ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। What two jobs are done by the saliva? सलाइवा के दो जॉब पूछे कि कौन से हैं? बेटे सलाइवा एक तो जो है फूड को सॉफ्ट करता है, जैसे उसकी च्यूइंग आसान हो जाती है, चबाना आसान हो जाता है, और दूसरा ये एमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव टू बी डाइजेस्टेड। ग्रुप में सेंड करेंगे। ये करूंगा मैं। Glucose molecules do not have to be digested. Starch molecules do. Explain this difference. बताया कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं होती, जबकि स्टार्च के मॉलिक्यूल्स डाइजेस्ट करने पड़ते हैं। तो ये फर्क क्यों है? But glucose molecules are smaller ones, which can easily be absorbed into the blood. They can easily pass through the wall of the blood vessels. And starch molecules are larger. They can't enter blood through the walls of blood vessels. So we need to digest starch molecules and convert them into smaller ones. Next question. Question number 7. Name the three nutrients which are broken down during digestion and say what they are broken down into. तो बेटे ये थ्री न्यूट्रिएंट्स, आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम के जरिए वो सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट होते हैं, और दूसरे नंबर पे प्रोटीन्स की बात कर लें जो प्रोटीएज एंजाइम्स के जरिए अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, और थर्ड नंबर पे आप फैट्स की बात कर लें जो लाइपेज जो एंजाइम्स होते हैं उनके जरिए फैटी एसिड्स और ग्लाइकोल्स में कन्वर्ट होते हैं। जी बेटा। सर मेरे भाई की क्लास है तो मैं क्या क्लास लीव कर सकती हूँ? जी बेटा कर सकते हैं, बाद में लेक्चर बाद में सुन लेना यूट्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि गिव 3 रीजंस व्हाई द विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर परफेक्ट फॉर अब्सॉर्बिंग फूड। कि विलाई की वो कौन सी फीचर्स हैं जो उसको खुराक को ऑब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होती हैं। तो बेटे विलाई का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, एक बात। 3 बातें उन्होंने पूछी हैं। पहली बात का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, दूसरी बात कि इनकी वॉल्स बहुत बारीक होती हैं, थिन लेयर ऑफ सेल्स हैं इनकी वॉल्स में, और तीसरी बात कि दे हैव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है विलाई की वॉल्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट्स द नेम ऑफ द ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस बाइल टू ब्रेक डाउन फैट्स। टाइम ओवर हो गया, 12:54 हो गए। जी बेटा टाइम ओवर हो गया। मैं एक्सरसाइज को साथ एक्सप्लेन कर रहा था कि सारे कंप्लीट हो जाए, सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे। अगर किसी ने क्लास को और ज्वाइन करनी है तो वो क्लास लीव कर सकते हैं बेशक, ये आपको उसमें लेक्चर में शामिल हो जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगा। तो पूछा कि व्हाट्स द नेम ऑफ द ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस बाइल टू ब्रेक डाउन फैट्स। लिवर इज द ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट पार्ट डू मसल्स प्ले इन डाइजेशन। कि मसल्स का डाइजेशन में क्या रोल होता है। मैकेनिकल डाइजेशन जो होती है जिसमें स्टोमक की वॉल्स की मस्कुलर वॉल्स की जो कंट्रैक्शंस है वो मसल्स के जरिए चूंकि हो रही है,
तो इससे खुराक की क्या है, चर्निंग हो जाती है, खुराक के छोटे पीसेस हो जाते हैं। और दूसरी बात कि मसल्स की मूवमेंट की वजह से पेरिस्टालसिस जो होती है, खुराक की मूवमेंट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो भी मसल्स के जरिए होती है। 11th क्वेश्चन है कि आवर बॉडीज कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर, व्हाई इज इट स्टिल इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट? कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये फाइबर को डाइजेस्ट तो नहीं कर पाता, लेकिन हमारी डाइट में क्यों जरूरी है? तो बेटे अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन के हवाले से बताया था कि जो फाइबर है, इट होल्ड्स वाटर इन इट, ड्यू टू व्हिच feces are softened and their removal becomes easy. Constipation can be avoided. जो feces होते हैं वो बल्की हो जाते हैं और सॉफ्ट रहते हैं, उनका अखराज आसान हो जाता है, इस वजह से फाइबर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, यू ईट अ चिकन सैंडविच फॉर लंच। इसके चिकन सैंडविच खाया, द ब्रेड कंटेन्स स्टार्च, ब्रेड के अंदर स्टार्च था, while the butter is mostly fat, बटर में फैट्स हैं, चिकन इज मेनली प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन्स भी हैं, फैट्स भी हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं इस खुराक के अंदर। प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं। Describe how this chicken sandwich is being digested so that the nutrients in it can be useful to your body. तो बेटे इसके जो प्रोटीन्स हैं, इसकी प्रोटीन्स, their digestion starts from the stomach and is completed in small intestine, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होती है एंड इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा क्वेश्चन है कोई? सर आपने अटेंडेंस मार्क कर दी है? अटेंडेंस कर दी हुई मार्क। तो मैं लीव कर सकती हूँ? हाँ जी कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चन खत्म हो गए, 2 क्वेश्चन रह गए हैं। तो बेटे जो फैट्स हैं, फैट्स के डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है, स्टार्ट ही वहीं पे होती है और वहीं कंप्लीट होती है, उसके बाद ये डाइजेस्टेड फूड ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाती है। क्वेश्चन 13 के व्हाट आर द मोस्ट लाइकली कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन की क्या वजूहात हो सकती हैं? बेटे लैक ऑफ फाइबर इन द फूड, लैक ऑफ वाटर और लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये इसकी कॉजेज हैं। एंड व्हाट कैन यू डू टू रिड्यूस द चांसेस दैट यू विल बिकम कॉन्स्टिपेटेड? बेटे फाइबर डाइट में ज्यादा यूज करें, पानी ज्यादा यूज करें, एक्सरसाइज का ख्याल रखें एंड गो टू लैबोरेटरी ऑन रूटीन। हाउ कैन कॉन्स्टिपेशन बी क्योर्ड? कि कॉन्स्टिपेशन का इलाज कैसे कर सकते हैं? बेटे लैक्सेटिव मेडिसिन जो है उसके साथ हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज अंडर स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस वी कैन अवॉइड इट। व्हाट आर द मोस्ट लाइकली कॉजेज ऑफ डायरिया? डायरिया की क्या वजूहात हो सकती हैं? बेटे इन्फेक्टेड फूड, इन्फेक्टेड ड्रिंक्स वगैरह जो हैं ये इसका सबब हो सकते हैं। एंड व्हाट कैन यू डू टू रिड्यूस चांसेस दैट यू गेट डायरिया? बेटे बाय अडॉप्टिंग एक्स्ट्रा हाइजीनिक मेजर्स, सफाई का ख्याल रखें, ज्यादा से ज्यादा हम इससे बच सकते हैं। हाउ कैन डायरिया बी क्योर्ड? जब डायरिया हो जाए तो बेटे एंटी डायरिया ड्रग्स के साथ उसको क्योर किया जा सकता है। तो ये बेटे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद नोट्स में ग्रुप में अभी शेयर कर देता हूं, और जो इसकी वर्कशीट है बेसिक फैक्ट्स की वो पहले गूगल क्लास में शेयर हो चुकी है, अभी वो भी नोट्स में उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर हो जाएगी। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।